Hello everyone, my name is Justin Jesudas and I'm your host for today's Abilities Unlimited. A very hearty welcome to each of you to the 9th edition of India Inclusion Summit 2020. And now it is time for us to kick off the 2020 Ability Unlimited India Inclusion Summit. When a car accident in 2009 left me paralyzed neck downwards, I was staring at two choices: either to crib, complain, and be the victim of the circumstances, or be the hero of my life and script my own story. I chose the latter, and that made all the difference. 10 years on, despite such a severe disability, I now travel around the world by myself, drive a hand-operated car to long distances, do beach surfing, and I'm a certified professional scuba diver. The first year and a half was a challenge, and as they say, all things are difficult before becoming easy. The first reaction to a situation like this is to ask, why me? I consciously steer away from this attitude because I never asked why me when I had a high-flying career, when I had a promotion, or when I bought a car. So why ask now? The hope and longing to walk again was there, despite knowing the prognosis for spinal cord injury is always poor. I decided to work on my strengths. Started working out on my upper arms very religiously. Nothing changed overnight, or over a week, or in a month. But in 3 months, for the very first time, I was able to get from my bed to wheelchair by myself using a transfer board. Until then, I was being lifted by 2 to 3 people. Thereon, I started setting goals and started working towards them. My disability can be measured by the doctors, but my ability, nobody can measure. There is simply no limit for your abilities. We now have a panel that brings together stalwarts from the industry and NGOs to talk about how corporates, NGOs, and social entrepreneurs can bring their strength together in the space of disabilities. The first question I have is to Padmavati. Hi Padma. One of the barriers for persons with physical challenges is infrastructure or office premises. With the new normal work from home, I believe there is no infrastructure barriers as we are working from home in our own space. Do you have any inputs or thoughts on this? See, my thoughts on this would be, Rakesh, that yes, with the new normal and the world has become virtual, it has opened lots of doors for people like us, and definitely that's a very positive thing. Harish, now I have the question for you. Is it the lack of awareness or the drawback of implementation that corporates are not able to provide a 360 degrees work from home or reasonable accommodations otherwise for people with disabilities? What do you think on that lines? I think that's where our push is towards, are we truly creating an ecosystem that is inclusive for any person to come and innovate, incubate, and start their own corporate? I think that's where we need to, the society that starts stopping and I see in the rural and the semi-rural areas, the opportunities are much more dismal. And how can we change it? By thinking more inclusively. How do we create an ecosystem where people all help themselves? So removing that romantic that we are charity and all that, but thinking more inclusively is where the society needs to change. Right? That's wonderful way of putting, Harish. I really like the way you narrated. The inclusive thought process is something which has to be inculcated in the organizations and the people who work in the organization. Pratna, let me come to you. Now we heard Padmavati and Harish talking about their perspectives. Do you think the organizations like Giftable can bridge that? I would say pandemic has taught us to think in different way. Especially I remember when COVID lockdown started, we were among those first few organizations. We completely moved to virtual within 2 weeks time. So today we can proudly say, last month we had this order from Cisco where they said, hey, we want to recognize 900 employees sitting in 900 different locations. Now imagine we getting in touch with courier partner and delivering those products made by people with disability to 900 different locations, supporting livelihood of so many people with disability, right? And that's the role Right. organizations like Giftable can surely play. We have come to the end of this session today. Thank you very much,
Prarthana, Harish, and Padma for sharing your views today. Thank you so much. We now move on to the next segment to hear about technology for inclusion, for which I introduce Dr. Sujata Srinivasan. R2D2 stands for Rehabilitation Research and Device Development. So I head that center at IIT Madras. And today I'd like to share with you the work that we are doing on technology for inclusion. If you look at the landscape of assistive devices in India and abroad, on the one hand, you have very primitive technologies, but they're very low cost. And that's typically what is available to most people in India. At the other end of the spectrum, you have very high-tech devices. Many of them have not even made the transition from the lab to the market. And even if they are available, they are extremely expensive and very few people can afford them. So as a result, they are also not that easily accessible to people with disabilities. So there really is a big space in the middle, many challenges where we can try to create more functional devices which are still affordable. And that is the space that we work in. So Arise is a wheelchair with an integrated standing mechanism. It was developed to address the problems associated with prolonged sitting for wheelchair users. After about 5 years of development, it was launched last November, in November 2019, with our industry partner, Phoenix Medical Systems. And it's a wheelchair that enables the person to shift from the sitting to the standing position by themselves with their own effort without any external support. It enables them to be more functional, and it's also suitable for outdoor use and on uneven terrains. So the idea is to improve not just the functionality, but also the psychological aspect, the benefits of standing, provide those to wheelchair users. We have IAS co-founder VR Feroz in conversation with Windsurf, the father of internet, and Rishad Premji, the chairman of Wipro. Hello, everybody. Welcome to the final session of the India Inclusion Summit. And maybe the only silver lining of COVID has been that I'm able to get both Windsurf and Rishad Premji at the India Inclusion Summit. But I want to jump quickly to the topic of disability, and Wind, you have a personal association with the topic. But I wanted to hear, what's your personal association with disability, and how do you see technology playing a very important role in kind of making it a much more level playing ground for the marginalized communities? So first of all, I was born 6 weeks premature in 1943, and so we guessed that they put me in an oxygen tank because my lungs are not fully developed. And it's assumed that the impact of being in an oxygen environment, high oxygen environment, initiated a sensory neural nerve loss in my hearing, which over time has lost about 1 dB per year. I started wearing hearing aids when I was 13, and the hearing aids have gotten better at about the same rate my hearing has gotten worse, so I've managed to stay more flat. But it certainly helped make me a lot more empathetic for people who have long-term disabilities or even short-term ones. So I've been very lucky that technology has allowed me to participate in the hearing world in a more or less normal way. So I am anticipating that technology will play an enormous role in assisting people to cope with daily life. And over time, I watched that technology improve. Ironically, though, computers, which are the most powerful tools ever invented, still stymie people who have disabilities, whether they're blind or visually impaired or hearing impaired. We could do better. Thank you so much, Vin, for sharing that. Rishad, do you want to share something about, I know Wipro has contributed to so many different areas. Any final message for the audience at the India Inclusion Summit? I think it's a great story, Vin, and I think it really brings out to life both the power of
how somebody's life can change with change and the power of technology to make that. Look, at Wipro, we've tried to be inclusive on a bunch of different levels, and we're still on that journey, right? And because we really want to have diversity in every shape and form at the company. And for us, diversity means not only that we attract people, but that those people then feel true to truly be themselves and be able to thrive in their own context and in their own environment, then feeling the need to acclimatize and change. And so I would strongly encourage organizations to think about this and make it an important agenda. Windsurf and Rishad Premji, thank you so much for doing this for us. And on behalf of the entire community, thank you so much for your time and your thoughts. Thank you. I look forward. Thank you. Thank you. Take care. Hello everyone, I'm Mansi Joshi. Welcome to the 9th edition of India Inclusion Summit 2020. This year, we have planned Resilient Me as our first event on day one of IIS 2020. On this day, we have with us an amazing bunch of speakers who will drive insights on mental health, mental well-being, inspire you, and share tips on how to stay strong and resilient across all seasons of life. Dear friends, through such summits, you are able to raise this voice which is much more needed. We have come across many children whom we rescued from slavery and child labor and trafficking, and they had some problems, physical or mental problems. And sometimes we found that they were more badly treated than other children. And sometimes they were badly treated by their peers in the workplaces. And that requires urgent attention and action to protect such children who are more vulnerable. We also know that the COVID-19 pandemic has exposed and exacerbated all kinds of injustices and inequalities prevailing in our society, in India and elsewhere in the world. Everybody should feel that no child is left behind. Let us have a chance, an opportunity that everybody can speak out, everybody can talk, and everybody listens each other's voice. That togetherness, that inclusion is must in any sustainable and peaceful society, any just society. Finally, let me underline here one thing, that some of our children, they are all our children in fact, if our children don't have eyesights, they definitely have bigger visions if we give them care and respect. Maybe no sight, but bigger vision to make the society a better place. They may not be having fully functioning legs or hands or other parts of the body sometimes, but their resolve is no less than anyone's resolve. And we have to respect that purity of their heart and their resolve. They should not feel vulnerable. They should not feel weaker. If one single child with disability feels abandoned, neglected, abused, weak, it's a curse on the entire society. We will make a better society by giving opportunity to every child because they are all our children. Thank you so much. I am Mansi Joshi and I'm a para-athlete. Last year, I won a gold medal at Para Badminton World Championship at Basel, Switzerland in August 2019, and it changed the course of my life. In the field of sport, multiple media houses also, named me as para-athlete or disabled athlete of the year. 2010 was the year I graduated from University of Mumbai in electronics engineering. And I got a job at a multinational company where I started working as a software engineer. It was just not even 1 year, that almost like within 1 year of joining, on 2nd of December 2011, on my way to work, I met with a road accident. I was hospitalized for 45 days and celebrated Christmas and New Year in the hospital itself. Post-injury, I had so many doubts and so many uncertainties regarding my future.
all my previous plans went into hibernation. That what I mentioned few minutes back. All those plans went into hibernation, and the only thing that was important to me was learning to walk, to relearn everything. So learning to walk was easy, but walking every day was hard because multiple reasons. Badminton was a sport that was a part of my life, and I feel sports help you build character. It teaches you to develop strategic thinking and analytical thinking. It helps you in goal setting, risk taking, and so many other essential life skills. Since December 2014, I've played multiple badminton tournaments in India as well as around the world. And in 2016, I won a bronze medal at Asian Championship in Beijing, China. I won bronze medal at World Championship in 2017. I know intensity is not what it was before, but I'm trying to be in touch. We don't have any, my next tournament is going to be in March 2021. But I want to maintain my older fitness level as these new dates are announced. And when they are announced, I'm going to jump back again into training, because what I feel is I have just arrived. Thank you, everyone. Thank you so much, Mansi, for sharing that inspiring journey of yours. Firstly, we want to congratulate you for all the amazing things that you've done. And we were extremely pleased to see you on Time Magazine as one of the future leaders of the world. For all the work that you're doing and championing for people with disabilities, we really wish you more power. We were also very excited to see now that there is a Barbie doll in your name as part of the Shiro's family. So on that note, on behalf of everybody at the summit, and from all the viewers tuning in, thank you so much for all that you've been doing, and we wish you more success in all your future endeavors. Hi, I'm Neha Kirpal. I'm a mental health ambassador based in India. I run a mental health tech startup organization with Dr. Amit Malik, and I run a mental health think tank called Librum, which is based in the UK, and it's with a few global scientists. We look at designing system solutions for mental health, working with governments, working with organizations, corporates, and educational institutions. India has over 200 million people suffering from mental illness. And mental illness is very different from mental health. WHO says mental illness is a 1 in 4 problem. But if one person is affected, the whole family is affected. And therefore, practically, it touches on all our lives. When you look at what mental health is, a state of well-being, a state of resilience, a state of physical and mental health that induces that state of well-being, we can recognize it in its fullness. But oftentimes, we are only looking at the challenges of mental illness. You look at depression, you look at anxiety disorders and more severe conditions like addictions and psychosis, and you can see the whole spectrum. If you think about all the feeder causes that lead into that, whether it is domestic abuse, domestic violence, lack of inclusion, physical disabilities, there are so many challenges that feed into the dysfunctionality and the disease of mental illnesses in this country. You begin with recognizing what's wrong, either within yourself or with those around you. You begin by reaching out and talking more openly and asking for help. You begin with the faith that if you ask for help, help would find its way to you, right? I think that is the beginning that I can hope for. And I hope that as we look at, in our journey, both with INRR and with Librum, but particularly with the work that we are doing on the technology platform that we're building, we believe it's all about access. It's about reach, right? My dream for India, as someone who has suffered the brokenness of this mental health ecosystem, as someone who did not have the education, did not have the awareness, we suffered as a family, not one generation, but 2, right? I'm 40 years old, and the last 35 years of my life have been a tragic story of mental health. And I am now trying to set out to make some difference in changing that. But it can't happen
by one person. It can't happen by 10 or by 100. The easiest way to bring change is to start talking about it. The more we do that, the more we reach out, the more we reach within. And if we can change something inside of us, I guarantee you that will bring about a change bit by bit. Thank you very much. In 1981, when I got a job with a little company called Apple Computer, I told them I spoke Spanish. And so my work took me to places around the Spanish-speaking world. I had trouble understanding when people started talking to me as if they thought I understood. So I learned a word that was very important and that helped me so much. And here is that word, despacito. Despacito, por favor, I'd say. It was my way of asking, please, go slowly. When I was invited to spend time with you today, the people of the IIS community, I began to research the things that this community believes in, does, and creates together. And I was taken back to a feeling that I hadn't had in many years. I thought about someone who's been one of my heroes for a very long time. The places where I find happiness are so often the places of despacito. The world moves too fast, and sometimes it seems to get away from us. Today, you have helped me remember and connect with the importance of slowing down and appreciating and truly caring for the world and the people around us. I find that muy linda, very lovely. नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। यार मेरी किताब। हेलो, ओए, नॉक नॉक। कब से हेलो हेलो कर रही हूँ? ओह सॉरी, मैं किताब में थोड़ा सा इतना घुस गए अंदर। ऐसा क्या है किताब में? मतलब बहुत ही अमेजिंग किताब है। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, क्या क्या साहस किया करते थे, कहाँ कहाँ पहुँचा करते थे, कहाँ कहाँ जाया करते थे। आजकल ऐसे लोग क्यों नहीं होते? कहाँ गए? कितने बजे आएंगे? है ना, बिल्कुल है ऐसे लोग। हमारी ऑडियंस ने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं और हमारे इस युवा उद्यमी कौशल शो से बहुत कुछ सीखा है। तो नमस्कार, मैं हूँ केतन सिंह और मैं काव्या सिरानी। आपको तो मालूम है कि किताबों में, फिल्मों में हीरो कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए क्या क्या नहीं करता। पहाड़ की चोटी तक चढ़ जाता है, दुनिया के कोने कोने तक चला जाता है। जाता है कि नहीं? इंग्लिश में इसे कहते हैं लास्ट माइल तक जाना। तो बिजनेस करते वक्त क्या लास्ट माइल तक जाना अक्लमंदी का काम है? क्या दुनिया के आखिरी गांव में रहने वाले ग्राहकों तक ऐसी हीरोगिरी करके पहुंचना पड़ेगा? आपके वहां पहुंचने से आपको उसमें शायद मुनाफा ना हो, लाभ ना हो, लेकिन गांव वालों के लिए आप हीरो बन जाओ। मनोज जी, दुनिया से कनेक्ट करने वाले हीरो। ये तो बहुत अच्छी बात है। कठिन है इसलिए इतनी शायद पॉपुलर नहीं है, इतनी लोकप्रिय नहीं है। और फिर दुनिया के आखिरी गांव में लोग होते ही कितने हैं, लेकिन वहां बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं और उनको भी फलने फूलने का हक है ना। सही बात है, सिर्फ जीने का ही नहीं, फलने फूलने का चांस मिलना चाहिए। हीरो बनना है तो लोगों की ही नहीं, जंगल, पहाड़, दरिया, मरुस्थल, आरक्षित वनों को ध्यान में रखते हुए हमें एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। अगर हम सब एक साथ 21वीं सदी तक पहुंचना चाहते हैं तो जहाज को ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई साहब। हाँ माना, आधी सफलता तो इतने दूर पहुंचने में ही है। पहुंचने के बाद ये बेचना, वो बेचना, जो आपको ठीक लगे सब बेचना। प्रॉब्लम तब होगी
जब आपको मालूम ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। इसीलिए कुछ भी बेचने से पहले उनकी ज़रूरतों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग स्किल्स। तो डिज़ाइन थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करें। बात सिंपल है, एक लॉजिक फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए, ज़रूरतें जानिए और फिर बेचिए। मैं सोच ही रहा था कि कब तुम इस डिज़ाइन थिंकिंग वाले सुपर पावर की बात करोगी। तो डिज़ाइन थिंकिंग की बात तय। पहले उनकी ज़रूरतों को जानो, उनके क्या प्रॉब्लम है समझो, फिर उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में हेल्प करो और हीरो बन जाओ। ज़्यादातर बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले अपनी ही धुन में रहते हैं। सोच बदलना, बिजनेस अलग तरीके से करना उनको मुश्किल लगता है। इसमें ग्राहकों को क्या चाहिए ये भूल जाते हैं। ग्राहक को चाहिए लुंगी, लेकिन उनको पड़ी अपने गले की। अरे तुम्हारे लुंगी से हमको क्या करना है, गल्ला भरो। अरे भाड़ में जाए। ए भगवान, शुरू हो गए आप फिर से। लेकिन यू आर राइट, जहां औरतों लड़कियों को सैनिटरी पैड्स की जरूरत है, वहां दूसरे लोगों को ऐसी जगह की जरूरत है जहां जमा होकर सब एक साथ रेडियो सुन सके, या फिर किसानों को फसल के बारे में जानकारी चाहिए हो, बदलते मौसम के बारे में कुछ पूछना हो, जैविक खेती करनी हो। वैसे तो जैसे आप जानते हैं दैट बाय नाउ बहुत सारे उद्यमी ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नए बिजनेसेस भी शुरू किए जा चुके हैं, जैसे इन उद्यमियों ने किया है। लेट्स सी। जब मैं क्लास 9th में पढ़ती थी तब मेरी शादी हो गई। मैं दरिया गई और श्राइन में शादी कर ली। एक बाइक में कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि सर्विसिंग करना, क्लच की वायरिंग, चेन सॉकेट को ठीक करना, क्लच प्लेट लगाना, पिस्टन वॉल्व लगाना, लाइट पर काम करने जैसे कई काम होते हैं। वह सारे काम मैं करती हूँ और यह मुझे काफी पसंद है। यह थोड़ा मुश्किल काम है जो दूसरी औरत नहीं कर सकती है, तो मुझे यह करना बेहद पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र में एक लड़का और एक लड़की में कोई अंतर नहीं है। आदमी थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं और औरतों से, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद मुझे समझ आया कि मैं भी वह सब कर सकती हूँ जो एक आदमी कर सकता है, और जो लड़कियाँ मैकेनिक का काम सीखना चाहती हैं वे उन्हें आसानी से कर सकती हैं। मेरा नाम हेमंत है और मैं 26 साल का हूँ। मैं अमेज़ॉन में एक एनालिस्ट के रूप में काम करता हूँ। अभी मैं सिल्क बोर्ड की ओर जा रहा हूँ और सिल्क बोर्ड के पास ही मेरा ऑफिस है, मर्स्थली जंक्शन में। कम से कम 2 घंटे मुझे लग जाते हैं अपने ऑफिस पर पहुंचने में। पहली चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूं वह है यातायात के साधन को। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या है हम सबके लिए। पहली चीज़ जो मैं अपने काम में बदलना चाहता हूं वह है कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प मिलना चाहिए। जैसे लोगों को 2 घंटे यातायात में बर्बाद करनी पड़ती है बेंगलुरु के नॉर्थ से साउथ जाने में, तो वे लोग समय को बचा सकते हैं और काम को घर से ही आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से वह अपने यातायात वाले समय को किसी दूसरी गतिविधि में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि योगा इत्यादि। तो मेरे ख्याल से यह एक ऐसी चीज़ है जो हमें बदलनी चाहिए अपने व्यवसाय में। मैं अपने युवाओं को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वह अकेले कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, न कि निजी वाहन का, ताकि हम लोग बेंगलुरु सिटी के जनसंख्या में बदलाव ला सकें और बेंगलुरु को फिर से एक गार्डन सिटी बना सकें। मेरा नाम भवानी भतीजा है और मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी। मेरे सह संस्थापक गौरव अरोड़ा के साथ हम भीतरी वायु प्रदूषण की समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही सतत समाधान और बहुत ही सस्ता समाधान प्रदान करना चाहते हैं। आप मानोगे नहीं, लेकिन भीतरी हवा 2 से 5 गुना अधिक हानिकारक है बाहरी हवा से। भारत में दिल के दौरे और रक्तचाप के बाद भीतरी वायु प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा हथियार है और कोई बात ही नहीं करता भीतरी वायु प्रदूषण की। तो शुरू करा और वहीं से ब्रीथ प्रेस की शुरुआत हुई। बहुत छोटों से हमने शुरुआत करी, जैसे कि जब हमने शुरू किया था तो उस समय पे ये सेटअप भी नहीं था, तो हम लोग अपने कमरे से ही काम करते थे।
कुछ अगर आपको नया बनाना है, अगर आपको शोध करनी है, तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ परिवेश नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, जो छोटा मोटा स्टार्टअप को वह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स का इतना माहौल नहीं है, खासकर विनिर्माण को लेकर। सबसे बड़ी चुनौती हमें ये रहती थी कि अगर कुछ हमें उत्पाद जुटाना है तो हमें ना हर कोई यही कहता था कि थोक में मिलेगा, मतलब छोटी मात्रा के लिए अगर हमें शोध करके भी देखनी है तो वह हमें नहीं मिलता था। इस देश में ना मोल भाव कौशल बहुत अच्छे काम आते हैं, खासकर जब आपको विक्रेता से सौदा करना है। जो काम आप कर रहे हो अगर उसके बारे में आपको ज्ञान है, चाहे किताबी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन लोगों से मिलते रहो जो पहले से ही इस उद्योग में मौजूद हैं, उनसे जाके मार्गदर्शन लेते रहो। अगर उनसे मार्गदर्शन आप लेते रहोगे ना, तो मतलब कोई आपकी ऐसी कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। वाह, क्या जबरदस्त लोग हैं ये। कुछ अलग करने की थी इनकी चाह, इन्होंने बनाई अपनी अलग राह। वाह शायर, वाह वाह शायर, वाह। काफिया जो मैं मिलाता हूँ। और अगर आप सितारों के नीचे सिनेमा घर बनाना चाहते हैं या फिर पंछियों के छोटे छोटे घोंसले भी बना के लगवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं। बिजनेस करने की क्षमता हो तो कुछ चीजें जरूरतें पूरी करने के लिए होती हैं और कुछ दिल को खुश करने के लिए। एक परफेक्ट बैलेंस, जरूरतें और चाहतें। डिजाइन थिंकिंग स्किल्स के साथ और एक बात है, दुनिया के सबसे कोने वाले गांव तक ये सब पहुंचाओगे कैसे? क्यों, सोच में पड़ गए ना? वो तो है, कौन मदद करेगा आपकी? इतनी सारी चीजें लेकर आपके गांव तक जाएगा कौन? जब आप सब कुछ बेच देंगे, आपको वापस भी तो लाना है, और प्रकृति को नष्ट किए बिना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, मतलब सतत विकास। वहां पहुंचे तो क्लीन एनर्जी के साथ, अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ, जिससे पर्यावरण को हम दूषित ना करें। आखिर दुनिया के सबसे कोने वाले गांव को सुंदर रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नेचर को रिस्पेक्ट कीजिए। आखिर हमसे पहले हाथी जंगलों में घूमते थे ना, और प्लास्टिक से लास्ट माइल को प्रदूषित करना गलत होगा। पर्यावरण का संतुलन हमें ही तो बनाए रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर लास्ट माइल तक पहुंचना है तो बहुत ज्यादा सोचने की और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी सोच या प्लानिंग अच्छी ना हो तो किसी काबिल पार्टनर को चुनना होगा। लॉजिस्टिक्स जो ये तय करती है कि सामान यहाँ से वहां जाएगा कैसे। क्या ई रिक्शा या ट्रेन तक सामान बांस के पैकेजिंग में जाएगी, ट्रेन से साइकिल पर लाद कर घर घर डिलीवरी होगी? इसके लिए तो हिसाब आना चाहिए। पैसों से लेकर टाइम टेबल, सब का हिसाब। इसमें कोई भी चेंज हो तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे बारिश हो गई, तो लास्ट माइल तक सामान वक्त पर कैसे पहुंचाओगे? ये तो अपने देश का बहुत बड़ा चैलेंज है, सही वक्त पर कुछ पहुंचना। मिसाल के तौर पे मानो आप कहीं केले भेज रहे हो तो लेट होने का मतलब पूरा शिपमेंट खराब। केला जो केला था वो पिलपिला हो जाएगा। या फिर सौर ऊर्जा वाली मशीन की डिलीवरी करते वक्त कोई पार्ट टूट गया तो भी आपका कीमती वक्त बर्बाद हुआ, और दोबारा मशीन को लेकर फिर सफर करना पड़ा तो प्रॉफिट की बात ही नहीं कर सकोगे ना भाई साहब। लेकिन जो स्मार्ट होगा वो बिजनेस करने का नया तरीका लाएगा। सर्विस के साथ उसकी टीम नया काम सीख कर आएगी। टूटे पार्ट को जोड़ना, रिप्लेस करना और तो और सौर ऊर्जा के नए उपयोग ढूंढना, जैसे पंप, फैन, फ्रिज चलाना। ये सब आप बस एक टूटे पार्ट के पीछे घूम रहे थे, वहां नए बिजनेस का सहयोग पैदा हो गया। लास्ट माइल वाले कस्टमर नई खोज करने में फर्स्ट आते हैं। बिजनेस की ये सारी नई खोज आप नई जगहों पर ले जाएं, एक गांव से दूसरे गांव तक, और फिर हर जगह आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी और नए उत्पादनों की चर्चा रहेगी। मधुमक्खी की तरह इस फूल से उस फूल पर आप आसानी से बैठ सकोगे। आपके बिजनेस का सब जगह बज़ होगा, क्यों नहीं? सस्टेनेबिलिटी के साथ, मतलब निरंतर विकास होगा। अच्छा ये बताओ, लॉजिस्टिक्स कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विश्वसनीयता। कंपनी पर विश्वास होना जरूरी है। जो काम प्रॉमिस किया है वो वक्त पर करें और सबसे बेस्ट क्वालिटी का काम करें। और अगर देर हो रही हो
तो कस्टमर को बता देना कि देर हो रही है। ये तो किसी भी अच्छे बिजनेस की पहचान होती है। इसी कारण जब आपकी कंपनी कुछ नया करती है तो ग्राहक उस पर विश्वास करता है। आज देश के ग्रामीण इलाके को क्या चाहिए? लॉजिस्टिक्स, उत्पादों को वक्त पर पहुंचाना, साफ ऊर्जा और पर्यावरण को नष्ट न करने वाली पैकेजिंग, बस और क्या। क्या बात। इसके साथ बिजनेस में विविधता हो तो 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप इतनी दूर जा ही रहे हैं तो आटे दाल के सिवाय अगर बच्चों के लिए किताब, कलम, मोबाइल फोन के चार्जर और किसानों के लिए बीज भी तो पहुंचा सकते हैं ना। ये देश इतना बड़ा है और जरूरतें उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। एक से ज्यादा चीज तो करनी पड़ेगी। ये सबके बस की बात नहीं है। आपको बस चौकस रहना होगा और इरादे पक्के रखने होंगे। पैसों का हिसाब, वजन की जानकारी, वक्त और प्रॉब्लम की प्लानिंग तो आप में है ही। थोड़ा आगे की सोचते हैं। आपके पास 1 या 2 नहीं, हर उपाय के ऑप्शंस होने चाहिए। कोई बदलाव आया तो विचलित ना होते हुए ग्राहक को इन्फॉर्म करके फिर आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ये सब सिखाएगा कौन? हमारे पास इसके लिए एक किताब है, आपने पढ़ी होगी, अब उसकी फिल्म भी देखिए। हमने एक बहुत ही अद्भुत एक्शन वाली पहेली बनाई है जिसमें आपने बिंदुओं को जोड़ना है। लॉजिस्टिक्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन उसे पहले देखिए लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी। आइए चलिए देखते हैं। सदैव जब जीवन में चुनौती आती है तो यह हमारे लिए एक मौका होता है कि हम साधारण से हटकर कुछ नया करें और इसका हल निकालें। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी में बिचौलिए सीता देवी जैसे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। सीता देवी बेबस होकर अपनी बेटी नम्रता से कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पैसे की जरूरत है, खेत को बिकने से बचाने के लिए कर्ज चुकाना पड़ेगा। नम्रता अपनी माँ की मदद करना चाहती है, लेकिन वह क्या कर सकती है? आखिरकार मैं सिर्फ एक युवा छात्र हूँ और मेरी पढ़ाई चल रही है। वह एक इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? वह एक अखिल महिला संचालित डिलीवरी सेवा और लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में एक टीवी समाचार रिपोर्ट देखती है और ऐलान करती है, मुझे इससे आइडिया आया है। क्या होगा अगर मैं माँ और अन्य किसानों को सीधे अपने ग्राहकों को उपज बेचने में मदद करने के लिए अपनी खुद की डिलीवरी सेवा कंपनी शुरू करूं? लेकिन विचारों को जितना सोचना आसान होता है, उन पर अमल करना उतना आसान नहीं होता। हालांकि नम्रता को हार मानने का अर्थ नहीं पता है। वह अपना शोध करती है और अपनी कंपनी स्थापित करती है। पुरानी डिलीवरी वैन खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग का उपयोग करती है और कृषि उपज को सीधे किसानों से ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू करती है। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी के साथ एक्टिविटी बुक है जिसे आप 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत मजा आया, कैसे कर दिखाया यार इन्होंने, उफ, शाबाश। बिल्कुल करके दिखा दिया उसने। अगर आपके पास भी ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी का कोई आइडिया है जिससे लास्ट माइल में रहने वाले बहुत लोगों की मदद हो सकती है, तो हमसे संपर्क करें। अपने बिजनेस आइडिया के बारे में हमें बताएं, कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, किन उत्पादों से क्या दाम पर, और आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना वीडियो बिजनेस पिच भेजें। अगर आपकी उम्र 18 या 23 के बीच में है और आपकी बिजनेस आइडिया अच्छी है, बहुत लोगों को जोड़ती है, तो हम आपको बुलाएंगे, आपकी तरह के अन्य बिजनेस आइडियाज जोड़ेंगे और तो और आपकी लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस वाली कंपनी में निवेश भी करेंगे। क्योंकि दुनिया के आखिरी गांव में रहने वालों को हीरो की जरूरत है। हीरो देखा, रियल लाइफ में आप भी हीरो बन सकते हैं। आम आदमी भी साहसिक कार्य कर सकते हैं। ठीक कहा। मेरी तो क्या बात कही है, मेरी तो आंखें खोल दी है एकदम। हाँ,
केतन, यही तो हमारे शो युवा उद्यमी कौशल शो का असली मकसद है ना, टू स्प्रेड अवेयरनेस, यानी सब में जागरूकता जगाना। आज हम 2 युवा से मिलने वाले हैं जिन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में सवाल पूछे हैं। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम करण कुमार शाह है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ और मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम फसल को सीधे ग्राहक तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम प्रिया चौधरी है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ, मैं किशनगंज से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिजनेस करने के लिए हमें लोन कहाँ से मिलेगा और इसकी प्रक्रिया क्या है। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और हम इसे कैसे करवा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं खुद की डिलीवरी कंपनी खोलना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा व कैसे। वाह, क्या क्यूरियोसिटी। I love it. I love it. I really think young people like you have so many questions that need answering. That is why we are here for you. My advice to all the young people out there, go out and get an internship. That is so true. Nothing like getting hands-on, first-hand experience of what you should or should not be doing. So go out, step out of your home and get an internship and write to us about the experience. और अब हमारे शो का वो हिस्सा जिससे आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिलेला, तोरी लचके न मतलब सबसे फेवरेट पार्ट जिसका नाम है सवालों के सिलसिले। खेलबा, बुझबा, चली। आज का पहला सवाल, लास्ट मील यानी लास्ट माइल पर क्या है। फिर से एक बार पूछ रहा हूँ कि लास्ट माइल पर क्या है। दूसरा सवाल, सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ है। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है। आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का पालन लास्ट माइल तक कैसे कर सकते हैं। रिपीट, आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का पालन लास्ट माइल तक कैसे कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है। लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है। क्या समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है। क्या समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है। आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना। भूलिए नहीं, आपके बिजनेस आइडिया पिच के अलावा आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या अलसिदानी। तो नमस्कार, मैं हूं काव्या अलसिदानी और मैं हूं केतन सिंह। नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे फंटास्टिक शो में जिसका नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो, जहां पे हम आपको बड़े ही मजे और मस्ती के साथ मिलवाते हैं कुछ ऐसे आइडियाज से, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से, कुछ ऐसे लोगों से जो आपको इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो काबिल, तुम मुझे बताओ कि इतना सारा समय और इतना सारा पैसा डालने के बावजूद कुछ व्यवसाय, कुछ काम फेल क्यों हो जाते हैं। अब बात छेड़ ही दी है तुमने पास और फेल की, तो ये बता देती हूँ कि एक व्यवसाय चलाने में सबसे बड़ा हाथ होता है एक अच्छे प्लान का। यानी हम क्या करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं उसकी एक योजना बनानी बहुत जरूरी है। अधिकतर व्यवसायी तो योजना का य भी नहीं जानते और इसीलिए फेल हो जाते हैं। वैसे तुमने पते ही बात की, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले एक योजना का होना तो बहुत जरूरी होता है। सपने और हकीकत में यही फर्क होता है। आपकी योजना जितनी अटल उतने ही आप सफल। इसी वजह से हमारे ग्राफिक नॉवेल प्रोग्राम का नाम हमने चुन कर रखा है, जिसका नाम है गेट अ प्लान। प्लान क्या है भाई, ये तो पता होना जरूरी है ना। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास आज इस प्लान के आगे भी कुछ बातें हैं करने के लिए। बोलो बोलो, है ना। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्यों व्यवसाय ऐसे पास और फेल के कटघरों में खड़े हो जाते हैं। ये सब कमाल है एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और अपनी बात को आगे रखने का।
मानो अगर दो लोग जो संबंधित हैं, जैसे भाई बहन, मम्मी डैडी, चाचा और मामी, और एक दूसरे के साथ एक व्यवसाय चलाते हैं, तो वो कहलाता है एक पारिवारिक व्यवसाय, मतलब फैमिली बिजनेस। और हमारे परिवारों की नींव तो झगड़ों पर ही रखी जाती है। पारिवारिक व्यवसाय में लोगों के बीच क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है, इनको लेकर बहुत मतभेद होते हैं। मतलब कैसे टाइप के मतभेद? जैसे इस साल हमें इतने लाखों रुपया का मुनाफा हुआ है। अब दो लोग हैं और दोनों का काम और स्वभाव अलग अलग है, तो राय भी अलग अलग ही होगी ना, ऑब्वियसली। तो एक को करनी है पार्टी और दूसरे को बढ़ाना है व्यापार। बस इतनी सी बात को लेके शुरू हो जाती है तू मैं, आपने ये, तुमने ये क्यों नहीं। और सोचो अगर उन दोनों को पता हो कि उस समय व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या होगा आपसी सहमति के बाद, तो बात ही कुछ और होती ना। हाँ, करेक्ट है। सभी परिवार वालों के कच्चे चिट्ठे सामने आने लगते हैं। सब परिवार वाले जब एक साथ काम करते हैं तो उसमें से कोई ना कोई एक निकल के आके बोलता है, ए तुम तो बड़े लालची हो, तो मुझे बिल्कुल पता था, तुम करते क्या हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, दिन भर बैठ गए थे बस छोले भटूरे खाने और उसके बाद दिन भर यहाँ वहाँ पर्यावरण को प्रदूषित करना है पौ करके। सिर्फ इन ड्रामों से बचने के लिए सही होगा कि लोग अपने अपने काम को बांट ले। इसके अलावा जरूरी होता है एक मिशन स्टेटमेंट, यानी वो एक लक्ष्य या फिर सोच जिसकी बुनियाद पर आपका व्यवसाय खड़ा है। अब चाहे आंधी आए या तूफान, आपको पता होना चाहिए कि बुरे समय आने पर आपके व्यवसाय को कैसे बचाना है। क्योंकि गलतियों का कोई मौसम नहीं होता और बेवक्त मुश्किलें किसी भी रूप में आपसे मिलने आ सकती हैं। और कैसे हो, मैं मुश्किल चाय पिलाओगे? हाँ, लेकिन तुम किस मुश्किलों की बात कर रहे हो? मतलब कमी नहीं है मुश्किलों की किसी भी व्यवसाय में। ग्राहक आपका पैसा समय पर ना दे तो मुश्किल, या फिर वो पैसे मिले ही ना आपको। आपकी सेवाओं से लेकर आपकी प्राइसिंग, यानी आप कितना पैसा अपनी सेवाओं के लिए मांग रहे हैं, इन सब पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेनदार, प्रतिद्वंदी, अरे कमाल के एक कंपटीशन खड़े हैं। उफ। तो भाई एक बात तो है, आप जिनके साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोगों का संबंध इस तनाव को झेल पाएगा या नहीं। आप में जो कमी है वो आपका भागीदार पूरा कर पाएगा या नहीं। तो इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो तुम्हें लगता है कि व्यवसाय फेल हो जाते हैं क्योंकि हम में क्षमता नहीं उन उलझनों को साथ में निपटने की? हाँ, पर सही योजना के साथ ये सब ठीक भी हो सकता है। लेकिन मेरा दिमाग तो दूसरी उलझन में चला गया। कौन सी दूसरी उलझन? बीमारियां और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ सालों से स्त्री और पुरुष के रोल्स बदल गए हैं, उनकी भूमिकाएं अब विकसित हो चुकी हैं। बीमारी के अलावा एक कारण और है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता है, स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई और अधिकतर लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का ना होना। जब बीमारी जैसी विपदा आती है तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं दो चीजें जिसका सीधा असर आपके काम पर पड़ता है। एक है रोगी की देखभाल और दूसरा दैनिक खर्चा। अस्पताल, दवाई, आने जाने का खर्चा, एम्बुलेंस, काफी लागत का सामना करना होता है आपको। ठीक कहा, ये सब मिलाकर एक व्यवसाय को बंद कर सकते हैं एक्चुअली। जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रोगियों की देखभाल करनी है और स्वास्थ्य के बिल्स के भुगतान के लिए आप अपना सारा नकद, सारी जमा पूंजी तक खर्चा कर देते हैं, तो अब आपके पास जितना पैसा है आप स्वास्थ्य सेवाओं में लगा देते हैं, और जब आपके व्यवसाय को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने की बारी आती है तो आपके पास पैसे ही नहीं होते। इतने कारणों की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा करवाना काफी महत्वपूर्ण है। होता यही है कि जो हुआ ही नहीं है उसके लिए पैसा जमा करना शायद फिजूल की बात लगती है अभी, लेकिन जब यही पैसा आपके घर और व्यवसाय को बचाए रखने में सक्षम रहेगा तब आपको समझ आएगा कि बीमा क्यों महत्वपूर्ण था या है। सही मायनों में अपने और अपने परिवार के लिए एक सही स्वास्थ्य बीमा पर शोध करें और उसका चयन करें। आपदा और आपातकालीन समय पता पूछकर तो आते ही नहीं, पर समझदारी इसी में है कि आप उस जरूरत के समय के लिए हमेशा रेडी रहें, जैसे इस मामले में स्वास्थ्य बीमा। और जब हम स्वास्थ्य के विषय पर हैं, सभी दूसरी समस्याओं या चुनौतियों के जैसे ये भी तेजी से बढ़ रहा सेक्टर है जो सभी प्रकार के नए उद्यमियों को जन्म दे रहा है।
हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें अस्पतालों की या डॉक्टरों की सेवा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं। तो ये घर आधारित देखभाल वाली सेवाएं एक अद्भुत उपाय हैं और आज की तारीख में ये एक उभरता उद्यम क्षेत्र भी है। ये तो बिल्कुल सही बात है, पर इसमें भी काफी मेडिकल ट्रेनिंग यानी चिकित्सा प्रशिक्षण को प्राप्त करने की जरूरत है। घर पर रोगियों और परिवारों की सेवा करने के लिए प्रमाणित होना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी कार्यालय के किराए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मनिर्भरता से हमारे बाकी उद्यमियों की तरह आगे बढ़ सकती हैं। और सोने पे सुहागा तो तब अगर आप महिला हैं और गाड़ी चलाना जानती हैं। आप वहां पहुंचने में सक्षम रहेंगी जहां रोगियों को आपकी जरूरत है। बिना किसी रोक टोक या अधीनता के आप दूर दूर तक के गांवों में लोगों की मदद करने पहुंच सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मोनी शर्मा है और इनका नाम सैनिक चटर्जी है। आज हम लोग यहाँ पे देखने आए हुए हैं कि आप लोग कैसे पेशेंट को केयर करती हैं, तो आप थोड़ा इसके बारे में हम लोग को बताइए। जो अभी स्ट्रेचर पे हैं उनको काला बुखार हुआ है। सुप्रभात मैडम, मैं बौरनाली कुंडू नाथ हूँ। यह खुशबू है और वह शोभिक पोल्ले है। मैम, बेड मेकिंग कैसे करते हैं? बेड मेकिंग ऐसे करते हैं, जैसे एक बिछाया होता है ऐसे देता हम सब, इसको नीचे बिछाते हैं, इसको ऊपर बिछा देते हैं, पेशेंट को फिर लेटाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।